नमस्कार सर। वर्ष 2021 के जन औषधि दिवस कार्यक्रम में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के औषध विभाग की ओर से हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। डिजिटल माध्यम से हमारे साथ उपस्थित केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के मुख्यमंत्री श्री, जनप्रतिनिधि, देश भर से जुड़े लाभार्थी, जन औषधि केंद्र संचालक, जन औषधि मित्रगण तथा अन्य सभी महानुभावों और मेहमानों का भी हम स्वागत करते हैं। अब माननीय मंत्री श्री रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा जी से अनुरोध है, अपने ओपनिंग रिमार्क्स के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। Honorable Prime Minister, sir, other central and state ministers, MPs, legislators, and other dignitaries who are participating in this mega event, Namaskar. The Ministry of Chemical and Fertilizers is highly indebted for your gracious presence to today's this mega event, sir. Sir, under your leadership, government is bringing silent revolution in the health sector since 2014. There has been perceptive improvement in accessibility of common men, including poor people, to affordable health care. Now there are schemes providing for free treatment for in hospitals up to 5 lakh under Ayushman Bharat Yojana, adequate care for nutrition for pregnant women under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, clean water to the people under the Har Ghar Jal Mission, bringing behavioral change towards the cleanliness under Swachh Bharat Mission, universal immunization for children under Indradhanush Mission, strengthening health infrastructure by construction of 10 new AIIMS and wellness centers, low-cost, high-quality generic medicine under PM Jan Aushadhi Bharatiya Jan Prayojana. Sir, the importance that has been given by you shows in the last budget that allocation of about 2.23 lakh crores for the health sector, which is about 137% higher than the current fiscal year, sir. Never before the health sector was given such an importance, and the present government under your visionary leadership has did it, sir. Sir, you have been pivotal in bringing this Pradhan Mantri Bharatiya Pariyojana to where it stands today. We can go back, sir. We can see the number of Jan Aushadhi Kendras in 2014 was mere 86, sir. The strategic interventions by you and the current government gave the required impetus to the scheme. As a result, today 7,499 Jan Aushadhi Kendras are functional across the state. All the districts of the country has been covered, sir. And today you are going to inaugurate one more Jan Aushadhi Kendra, which takes the tally to, sir, 7,500, sir. The product basket is also like that, sir. In the year 2014, only 131 products were in the basket, sir. Today, 1,449 medicines and 204 surgical items are included in the basket, sir. The total turnover, sir, a mega jump has been taken, sir. See, in 2004, it was mere 7.29 crores, sir. In the year 2013-14, today it has gone to 6,000 crores during the year 2021, sir. Sir, this scheme has a cascading effect on the citizens, sir. Approximately 1 to 1.25 crore people are taking medicines from Jan Aushadhi Kendras every month, sir. Sir, a special mention need to be made, sir. This scheme has led to an annual savings of approximately 3,600 crores to the common citizens of the country, sir. Sir, in fact, if I don't mention, certainly the popularity of the Kendras can be judged from the fact that the people refer these Kendras as Pradhan Mantri Ka Dukan, sir. Sir, even during the COVID-19 pandemic, sir, the our PM BJP Kendras have rendered essential services to the nation. All the Kendras maintaining their operations regularly, sir. We can see by the statistics, sir, the growth rate for the first 2 quarters in the year 2021 is 60% when it is compared to the earlier years, sir.
Sir, I am sure the scheme under your able leadership and vision will grow further and enable us to serve the citizens with greater motivation. We look forward your continued blessings, sir. With these words, sir, once again, I welcome you to this mega event, sir. I welcome all the participants across the country, sir. Thank you, sir. Thank you, Minister, sir. Sir, the development progress of the Northeast region is a priority for this government. Aushandi Kendra at Nigrims, Shillong. Honorable Prime Minister, sir. Thank you, sir. Sir, we also thank Honorable Chief Minister Meghalaya, Shri Conrad Sangma, and Honorable Minister of State, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Shri Mansukh Mandavia, for their presence at the Kendra, sir. सर, देश के अलग अलग स्थल पर से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थी केंद्र संचालक अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वह योजना के लाभार्थियों के साथ सीधी बात करने का अनुमति दें। प्रारंभ कीजिए। पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के थियोग तहसील से श्रीमती कृष्णा वर्मा को आमंत्रित करती हूं कि वह माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात करें। श्रीमती कृष्णा वर्मा। कृष्णा जी नमस्ते। नमस्ते जी। कृष्णा जी बताइए। सर, मैं जिला शिमला के सरोग गांव की रहने वाली हूं सर, और मैं पिछले 20 सालों से हाई बीपी, शुगर और दिल की मरीज हूं सर। और मैं पहले सर इसके लिए मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती है सर उम्र भर के लिए। और जो मैं पहले जो मुझे ये दवाइयाँ प्राइवेट दुकानों में 5-6 हजार में मिलती थी, फिर जब सर मैं एक दिन दवाई लेने जब हॉस्पिटल आई तो मुझे वहाँ किसी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जन औषधि की जो दुकान खोली गई है उसमें बहुत सारी सस्ती दवाइयाँ मिलती है। तब सर मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे जो दवाइयाँ पहले 5-6 हजार पर एक महीने में देने पड़ते थे सर, और वो मुझे अब 1800 रुपए में मिल रही है। सर मैं पेशे से एक किसान हूँ और हम अपना गुजारा हम इस खेती बाड़ी से ही कर रही हूँ। और मैं मेरे पति और मेरा पूरा परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है सर। और अब मुझे जब आपकी मोदी जी की दुकान से जो दवाइयाँ मिलती है, मेरे बहुत सारे पैसों की बचत हो रही है सर, और उससे मैं घर का खर्च भी चलाती हूँ और बुढ़ापे के लिए अपनी सेविंग भी कर रही हूँ सर। पहले लगता था जब हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, मैं सोचती थी सर कि मैं या तो अपना इलाज करवाना छोड़ दूं या मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे घर परिवार पर पैसों का बहुत बोझ पड़ता था सर। इसलिए मैं सोचती थी कि मैं अपना इलाज ना करवाऊं। पर सर जब से आपकी मोदी जी की दुकान से दवाइयाँ लेती हूँ मुझे बहुत फायदा हो रहा है और वह मेरे जीने की आशा जगी है कि मैं अब नहीं अपना इलाज रोकूंगी। आप हमारे हिमाचल, हमारी देवभूमि के लिए आप देवदूत बनकर आए हैं सर। और मैं अपने आसपास की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, अपने रिश्तेदारों को भी बोलती हूँ कि आप जाइए मोदी जी की दुकान से जन औषधि से दवाइयाँ लीजिए और आप अच्छे से अच्छी वहाँ पे दवाइयाँ मिलती है और आप वहाँ से दवाइयाँ लीजिए और अपना पैसा भी बचाइए सर। आपने हम गरीब मरीजों, महिलाओं, किसान, बागवानों को जो आपने किया है उसके लिए हम उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। कृष्णा जी। हाँ जी कृष्णा जी, मुझे अच्छा लगा आज थियोग वालों के दर्शन मुझे हो रहे हैं। हाँ जी सर। शायद आपको मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं पहले थियोग बहुत आया करता था। हाँ जी क्योंकि मेरा एक कार्यक्षेत्र था तो मेरा थियोग आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन मैं हैरान हूँ, थियोग में तो
25-50 कदम भी सीधी सड़क नहीं है, ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है। उसके बाद भी आपको डायबिटीज कैसे हो गया? पता नहीं सर कैसे हो गया, ये तो मुझे नहीं मालूम। अभी कितना पैसा पहले खर्च होता था, अभी कितना होता है? सर अब 1,800 रुपया खर्च होता है सर। और पहले कितना होता था? 5-6 हजार एक महीने में देना पड़ता था सर। और ये दवाइयाँ मुझे खानी भी जीवन भर है सर। कृष्णा जी देखिए, दवाइयां तो जरूर खानी पड़ेगी क्योंकि अब ये बीमारी ऐसी है कि घुस गई है, लेकिन सर। आप भी कुछ योगा वगैरह करते रहिए, जरूर उससे लाभ होगा। डायबिटीज के लिए भी कुछ योगा है, इसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आज थियोग के लोगों के मुझे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे हैं, सबको मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी औरों को इस काम के लिए प्रेरित करती हैं, मोदी की दुकान पर लोगों को भेजती हैं। आप लोगों के पैसे बचेंगे तो अच्छे काम में आएंगे। और सरकार की कोशिश यही है कि दवाई के पीछे जो खर्च होता है, जो गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार को उसके कारण बहुत तकलीफ हो जाती है, लेकिन आपने ये बात को ठीक से पकड़ा, लोगों को पहुंचाया। मेरी तरफ से आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और थियोग में तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए जी। मैं थियोग इतना बढ़िया जगह है, वहां बीमारी नहीं घुसनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सर कि आप दीर्घायु हो। आप बागवानों, गरीबों और किसानों के हितैषी है सर। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप दीर्घायु हो, हम गरीबों, बागवानों, किसानों के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें। बात आप माताओं बहनों का आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत कुछ है। और हिमाचल का तो हर परिवार देवदूत परिवार है। हर परिवार ने देश की रक्षा के लिए बच्चों को दिया है, तो हिमालय तो अपने आप में देवदूत का भूमि है। हाँ जी सर। साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी सर। ये भी हमारे गरीब किसान, बागवान, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं सर। बाकी यहाँ बैठे जो और भी गणमान्य व्यक्ति है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद कृष्णा जी। सर थैंक यू। अभी हम मध्य प्रदेश में भोपाल में सर श्रीमती रुबीना जी और उनके बेटे मोहम्मद जईद। శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మీ గృహ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలకు స్పైరన్ మరియు కోర్సా సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్, హిమజల్, ఆర్వో ప్లస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్. శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్. जैद साहब जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनसे। रुबीना जी नमस्ते। मोहम्मद क्या पढ़ते हो? जी सर कुछ नहीं करते मोदी जी। मोहम्मद पढ़ते हैं क्या? जी नमाज पढ़ते हैं जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरा कहना ये, मैं रुबीना जी बोल रही हूँ भोपाल से। जी मेरे पति बस पे कंडक्टरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना है। और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है। और जो 5,000 रुपए महीने की दवाइयां मैं इसको खिलाती हूँ, मैं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाती हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। और साथ में कर्जदार भी हूँ और मेरे घर गिरवी रखने की और लोन लेने की नौबत आ चुकी है। लेकिन मेरे पड़ोसियों ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहां से सस्ती दवाइयां खरीदी, मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली, मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी और आगे भी सहायता करें। मेरा कहना यह है कि हम सभी महिलाओं के लिए मोदी जी की सहायता से जुड़े रहें, ताकि मोदी जी हमारे आगे सहायता करें। रुबीना जी, मैं जानता हूं जब घर में बीमारी आती है और बच्चे की ऐसी स्थिति है, आपको हर पल बच्चे को संभालना पड़ता है, तो मैं जानता हूं एक माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं इसका पूरा अंदाज लगा सकता हूँ। जी सर, जी सर।
मैं अपने घर ठीक से नहीं लेकिन चला पा रही, बहुत परेशान हूँ। और जब बीमारी आ जाती है तो मजबूरी हो जाती है कि ये दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। लोग उसको मोदी की दवाई दुकान कहते हैं तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाइए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए। पैसों के अभाव में दवा न लें, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सब मेरे भाइयों बहनों से यही कहूंगा कि कम पैसों में दवाई मिल जाती है और दवाई अच्छी होती है। आप विश्वास के साथ इसको कीजिए। बस मेरी आपको शुभकामना है, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और आपके बेटे का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती रुबीना जी। अब सर हम अहमदाबाद में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के जन औषधि मित्र श्री राजू भाई बयानी और इनके टीम को आमंत्रित करते हैं। सर राजू भाई नमस्ते। नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते नमस्ते। मेरा राजू नाम- बताइए। सर मेरा नाम राजू भायानी है, मैं अहमदाबाद का रहवासी हूँ। सर मैं करीबन 2 अहमदाबाद साल में से कहाँ रहते हैं प्रधान- राजू जी? सर मैं नया निकोल में रहता हूँ। सर करीबन 2 साल से मैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर हम लोगों ने जब ये कोरोना की महामारी में हम सब जन औषधि मित्रों ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की थी। हम लोगों ने सर घर घर जाके हमारे जो मरीजों है, जो रेगुलर पेशेंट है बीपी डायबिटीज, उनको दवाइयाँ पहुंचाई है। सर उसके बारे में मैं थोड़ा 1-2 मिनट बोलना चाहता हूँ। सर हमने देखा कि जैसे कोरोना की महामारी में लॉकडाउन आगे बढ़ता गया तो हमारे वहाँ मरीजों की संख्या बहुत कम आने लगी, क्योंकि सब लोगों को डर लगता था कोरोना का। जो बुजुर्ग थे उनको तो ज्यादा लगेगा। उस वक्त सर माहौल ही ऐसा था, हम सबको पता है। सर मेरे घर में भी एक हादसा हो गया, मेरे फादर की कोरोना की वजह से डेथ हो गई है। इसलिए उस समय सर हमें विचार आया कि मेरे साथ तो ये हुआ है मेरे परिवार में, तो किसी के परिवार में ऐसा ना हो, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तब मैंने हमारे जो स्टोर ओनर है प्रदीप भाई, उनके साथ बात की और एक अभियान के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला ये अच्छा काम है, हम करते हैं। तो हमारे ऊपरी अधिकारी के मिलकर सब हमने ये अभियान की शुरुआत की। तो हमारे पास जो डेटाबेस था उनसे हमने धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 कस्टमर से बात की हमारे। तो उन लोगों ने बोला हाँ हमारे पास मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन हमें क्या है अभी बाहर आने में बहुत डर लगता है, तो ऐसा कुछ हो सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो सर हमने धीरे धीरे हमारे जन औषधि मित्रों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू कर दिया। करीबन हमने सर अभी 8 से 10 हजार मरीजों को दवा पहुंचाई है। हमारे साथ एक पूरी अभी सर 250 लोगों की टीम है। और एक बात, जब हम दवा पहुंचाने जाते थे तो बुजुर्ग बोल रहे थे कि आप हमारे लिए मेडिसिन नहीं, मोदी जी की दुकान की आप मेडिसिन ला रहे हो। और सर वो लोग आशीर्वाद देते थे कि मोदी जी लंबी उम्र तक जिए और ऐसे योजना बना रहे और काम करते रहे। और सर धीरे धीरे ये हमारा अभियान पूरे अहमदाबाद में फैल गया। और एक बात कि हम एक बुजुर्ग ने तो हमें ऐसा बोला, सर मैं गया तो आप हनुमान जी के सेवक हमारे लिए संजीवनी लेके आ रहे हो। तो मैंने बोला सर कि आप ऐसा क्यों मैं बता रहे हो? तब बोला कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनके लिए हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे और उनको जीवन दान मिला था।
तो ऐसे ही हम जैसे कई मरीज है जिनके लिए मोदी जी एक दुकान से संजीवनी दे रहे हैं और हम जी रहे हैं। तो सर बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे थे और आपके लिए दुआ है, हम लोगों को भी सब बड़ी लोग के आशीर्वाद मिल रहे हैं। और सर लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे देश इतनी जल्दी एक टीका का आविष्कार कर देगा। सर एक नहीं, दो नहीं, तीन कंपनियों ने हमारे वहाँ टीका का आविष्कार कर दिया। और सर इतनी बड़ी जनसंख्या में आपके आगेवानी में अभी जो टीकाकरण हो रहा है, हम तीसरे स्टेज पर तो पहुंच गए, कई सारे बुजुर्ग को अभी टीकाकरण हो रहा है। तो सर और एक बात कि हमारे वहाँ तो टीकाकरण हो रहा है, सर आपने कई ऐसे देश है जहाँ पर टीका की उपलब्धि नहीं है, वहाँ पर भी आप पहुंचा रहे हैं। तो सर इनके लिए हम सब जन औषधि मित्रों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट देना चाहता हूँ सर। राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए और घर घर आज भी आप जन औषधि पहुंचा रहे हैं। आप हर परिवार का कितना पैसा बचा रहे हैं और दवाई सस्ती मिलने के कारण वो दवाई के पीछे जरूरी जो भी खर्च करना पड़े वो करता भी है, तो कईयों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो सचमुच में आप बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए, और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो तो अपना जीवन खपा देते हैं, और ये आपने करके दिखाया है। और देश में ऐसे कई नौजवान हैं वो करते रहते हैं, और वही हमारे देश की बड़ी ताकत है। और इसलिए मैं आपको बधाई। एक मैं छोटा काम बताऊंगा अब आपको, क्योंकि इतना बढ़िया काम करते हैं तो मन करता है कि आपको एक काम बता दूं। देखिए, जो सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर है जहां टीका लगता है, आप वहां पर अपने साथियों की ड्यूटी लगाइए, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका वैक्सीन हो जाए, उनका जो फॉर्म वॉर्म भरना होता है वो भरना हो जाए, उनको बैठने की व्यवस्था हो जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। आप देखिए, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। हाँ, तो करेंगे आप लोग? सही में करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वाध्यक्ष कर देंगे हम सर। बहुत धन्यवाद राजू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। राजू भाई आभार। अब सर हम दीव में मारुति नगर में श्री इरशाद अहमद रफीक भाई को आमंत्रित करते हैं कि वो आपसे बात करें। इरशाद नमस्ते। नमस्ते साहब जी। हाँ रफीक जी बताइए। कैसे हो साहब? मैं इरशाद रफीक भाई कुरैशी बोल रहा हूँ। दीव संचालक हूँ मोदी मेडिकल स्टोर। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस कि मुझे 3 महीने ही हुए हैं ये मोदी मेडिकल स्टार्ट किए हुए। तो मैं पहले एक छोटे से मेडिकल स्टोर में फार्मेसिस्ट की जॉब करता था और मेरी तनख्वाह थी 8,000 रुपये ओनली। और पहले से ही मेरा ड्रीम था कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूं, लेकिन मेडिकल स्टोर वो भी हो कि जिसमें सेवा भी कर सकूं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से बढ़िया कोई ये मौका नहीं था कि जिसमें सेवा भी हो और कमाई भी हो। तो आज 3 महीने में मेरी आवक 3 गुना हो चुकी है जी, आपके आशीर्वाद से। रफीक, कितने लोग जन औषधि का फायदा उठाते हैं? अभी 1 महीने में मैं आपको बताऊं तो 1400 से 1500 आदमी
फायदा उठा रहे हैं और ये यहाँ पे मोदी मेडिकल के नाम से ही फेमस हो चुका है सर। लेकिन और जो दवाई की दुकान वाले हैं वो अब आपको भी गुस्सा करते होंगे कि भाई हम तो दवाई पहले इतने बेचते हैं, तुम कहाँ से मोदी को ले आए, हम तुम इतनी सस्ती दवाई देते हो तो हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा, लोग चिल्लाते होंगे। तो इसमें तो सर ये सेवा है, उनको सबको साथ देना चाहिए, सबका साथ सबका विकास है ये। देखिए आपने अच्छा काम किया है और आपने पढ़ाई फार्मेसी की और दुकान खुद की बनाने का मन कर गया, लेकिन फिर भी आपने सेवा भाव से दुकान चलाने वाले काम में जुड़ गए, तो आप तो एक प्रकार से मेरे बहुत अच्छे मजबूत सहयोगी बन गए हैं। क्योंकि जितने जन औषधि केंद्र चलाते हैं वे मुनाफे के लिए नहीं चलाते हैं। आज 7500 750 करीब 7500 जन औषधि केंद्र में जो लोग बैठे हैं वो एक प्रकार से समाज सेवा के मेरे सबसे बड़े साथी बन गए हैं। रफीक, आप भी उसमें से एक हैं। मेरा यही आग्रह रहेगा कि लोगों को ये बार बार बताते रहिए, जिनको इसका फायदा हो रहा है उनको कभी कभी महीने में एक आध बार इकट्ठा कर लीजिए और किसी को बुलाइए ताकि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी अच्छी बातें बताएं, क्या खाना क्या न खाना, कितना समय सोना कितना समय नहीं सोना। तो एक बहुत बड़ा दीव में तो क्रांति आ जाएगी, और दीव तो ऐसा है कि जो किसी भी चीज में क्रांति कर सकता है। जैसे आप लोगों ने सोलर एनर्जी में किया है, कितना बड़ा अद्भुत काम किया है। यस सर। दुनिया में लोग कहते हैं नेट न्यूट्रल की बात, आपने दीव वालों ने तो जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा सोलर की पैदा कर दी है। तो दीव वाले तो कमाल कर सकते हैं। तो मैं रफीक चाहूंगा कि बहुत लोगों को आप इससे जोड़िए, लोगों के पैसे बचेंगे, अच्छे काम के लिए लगेंगे और बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू श्री ईश्वर जी। सर, अब हम कर्नाटक में मंगलूर में डॉक्टर पद्मनाभ कामत जो जन औषधि को बढ़ावा देते हैं उनको आमंत्रित करते हैं। सर नमस्ते मोदी जी। नमस्ते डॉक्टर कामत। सर, मैंने ये जन औषधि का एक अभियान 3-4 साल से शुरू किया। उसको मैंने जन औषधि जनोपयोगी अभियान बोल के शुरू किया। मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि शाम के समय और रात के समय पहाड़ी जिलों में दूर के जगह में अगर एक किसी का हार्ट अटैक होता है तो उनका ईसीजी करने में बहुत मुश्किलात होती थी। तो लोग दूर दूर से अस्पताल के लिए सफर करना पड़ता था। तो मैंने ये सोचा कि जनऔषधि तो रात के 10-11 बजे तक खुला रहता है, गांव का जिले में है, देश का बहुत जगह पे है। तो हमने एक अभियान चलाया 3 साल पहले। वो अभियान से हमने जनऔषधि में ईसीजी मशीन लगवाया। सर, आरंभ में बहुत लोगों ने मेरा निंदा की सर। धीरे धीरे निंदकों की संख्या भी कम हो गई और उनका बोलती भी बंद हो गई। सर, उन्होंने बोला ये पागल है, हार्ट का डॉक्टर है, क्यों जनऔषधि के साथ मिला हुआ है। मैंने बोला मैं जनऔषधि से इसलिए मिला हूं, मेरे को लोगों की परेशानी मालूम है। और मैं बोलना चाहता हूं सर, जो हमने एक ईसीजी मशीन से 2018 में एक अभियान शुरू किया कायकल्प बोल के, अभी हमने 6 जिले में सभी जनऔषधि केंद्र में 20 जगह जहां बहुत फुटफॉल्स रहता है, जहां जनऔषधि केंद्र का हमको सहकार है, और वहां ईसीजी मशीन लगवा के उनको ट्रेन करके उनको हमने ईसीजी करने में मदद की। सर, अभी उसका वो फलानुभवी बहुत लोग हैं और मैं गर्व से कह सकता हूं सर कि ये 100 से ज्यादा हार्ट अटैक हमने डिटेक्ट किया है और बहुत ही जान बचाई है। सर, इस साल का 2 थीम है, सेवा भी और रोजगार भी। मैं भी उसका भागी हूं सर। मेरे को इस साल का थीम पता नहीं था। 2 साल पहले एक युवक मेरे से आके बात किया। वो बोला मेरे को रोजगार नहीं है, मैं मेडिकल शॉप चला रहा था, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मैंने अपने हाथ से उसको पैसा देके एक जनऔषधि खुलवाया मंगलोर में, और मेरे को गर्व है सर, अभी 2 साल में वो जनऔषधि अभी टॉप है
हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसका जन औषधि में भी हमने ईसीजी मशीन लगवाया है सर। सो मेरा बोलना है सर कि जन औषधि को जनोपयोगी बनाने से हमारा हैसियत भी बढ़ जाएगा और हमारा वो लोगों में उनका एक इज्जत भी बढ़ जाएगा सर। बहुत लोग मेरे से आके बोलते थे, आप इतना बड़े डॉक्टर हो के जन औषधि पेशेंट को क्यों भेजते हो? मैं बोलता था, मोदी मेडिकल्स के आपको उसको विश्वास नहीं है, आपको कोई हैसियत पे, मोदी की हैसियत पे कोई डाउट है? नहीं है ना? मेरे को भी डाउट नहीं है। आप जाओ उधर, अच्छी दवा मिलेगी। अभी जो मेरा निंदा करते थे अभी चुप हो गए हैं सर। डॉक्टर कामत, मैं सबसे पहले तो आपके इस सेवा भाव के लिए बधाई देता हूं। और आप कन्नड़ भाषा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आपने मुझे एक अच्छा नारा दे दिया, जन औषधि जन उपयोगी। बहुत ही अच्छा आपने हिंदी में नारा दे दिया, जन औषधि जन उपयोगी। और डॉक्टर, आपकी ये इनोवेटिव कल्पना है, ये मुझे लगता है, वैसे आपको देख करके ही लगता है कि शायद सेवा आपके संस्कार है। एक डॉक्टर के नाते जिस सरलता से आप बात बता रहे हैं, यानी हम जो डॉक्टरों की कल्पना करते हैं वो एक सा का मूर्त रूप है आप। और मुझे अच्छा लगा, आपके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। और आपने आर्थिक रूप से संकट में एक नौजवान को मदद करके उसको एक अच्छा ही रास्ता दिखा दिया। और ये ईसीजी वाला आपका प्रयोग है, वो तो वाकई में मानता हूं, जो जन औषधि केंद्र के लोग आज सुन रहे हैं उनको भी ऐसे नए नए आइडियाज आएंगे और वे भी कुछ डॉक्टरों की मदद से जन औषधि केंद्र को एक प्रकार से जन उपयोगी बना देंगे। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। भारतीय जन औषधि परियोजना के परिवार के कुछ सदस्यों के साथ सीधी चर्चा करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का धन्यवाद। अब सर, हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में विभिन्न श्रेणियों में परियोजना में जिन्होंने काम किया है, प्रशंसनीय प्रयास किया है, उन विजेताओं को माननीय मंत्री श्री गौड़ा जी के हस्तक अवार्ड्स प्रदान करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति हो तो आगे बढ़े। थैंक यू सर। प्रथम पुरस्कार जन औषधि चिकित्सक उन डॉक्टर्स के लिए स्थापित किया गया है जो కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885552, 9100885555. जेनेरिक दवाइयों को बढ़ावा देते हैं और मरीजों को भी जेनेरिक दवाई लेने के लिए प्रेरित करते हैं। दिस अवार्ड is presented to Dr. Padmanabh Kamath, Professor and Head of Department at MC Hospital, Mangaluru. दूसरा पुरस्कार जन औषधि सारथी उन स्थानिक वितरक डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए स्थापित किया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में जन औषधि केंद्रों पे सबसे ज्यादा जन औषधि दवाइयां सप्लाई की है। दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू श्री गौतम कुमार जैन, बेंगलुरु, कर्नाटका, फॉर हाईएस्ट सप्लाईज बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर अंडर द स्कीम। तीसरा पुरस्कार जन औषधि ज्योति उन औषधि केंद्र संचालकों के लिए स्थापित किया गया है जिन्हें महिला उद्यमी चला रही हैं केंद्र को और सबसे ज्यादा बिक्री भी कर रही हैं। और यह पुरस्कार जन औषधि केंद्र मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की संचालक श्रीमती विनीता जैन को
हर महीने लगभग रुपये 8 से 9 लाख की बिक्री करने के लिए दिया जा रहा है। किसी कारणवश श्रीमती विनीता जैन इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, परंतु पुरस्कार उनको अपने केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। वो शिष्य आ गए हैं। परियोजना परिवार के सदस्यों को पुरस्कार से प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र आग्रह है कि अपने संबोधन द्वारा अपने दिशा दर्शक विचारों की अभिव्यक्ति करें। नमस्कार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी, श्री मनसुख मांडविया जी, श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनार्ड के सांगमा जी, डिप्टी सीएम श्री प्रेस्टोम तिनसोंग जी, गुजरात के डिप्टी सीएम भाई नितिन पटेल जी, देश भर से जुड़े जन औषधि केंद्र संचालक, लाभार्थी महोदय, चिकित्सक और मेरे भाई और बहनों, जन औषधि चिकित्सक, जन औषधि ज्योति और जन औषधि सारथी, ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त करने वाले, सम्मान पाने वाले मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। भाई और बहनों, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है। आज भी जब 7,500वें केंद्र का 75वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। साथियों, 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और
हम हो सके उतना जल्दी तेजी से 10,000 का टारगेट पार करना चाहते हैं। मैं आज राज्य सरकारों से, विभाग के लोगों से एक आग्रह करूंगा। आजादी के 75 साल हमारे सामने महत्वपूर्ण अवसर है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए। अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा न हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी न हो। इन 2 चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। एक काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। ये जन औषधि केंद्र हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में के लगभग 3600 करोड़ रुपए बचा रहे हैं और ये रकम छोटी नहीं है जो पहले महंगी दवाओं में खर्च हो जाते थे। यानी अब इन परिवारों के 3600 करोड़ रुपए परिवार के अच्छे कामों के लिए और अधिक उपयोगी होने लगे हैं। साथियों, जन औषधि योजना का तेजी से प्रसार हो, इसके लिए इन केंद्रों का इंसेंटिव भी 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और पूर्वोत्तर के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का इंसेंटिव अलग से दिया जा रहा है। ये पैसा उन्हें अपना स्टोर बनाने, उसके लिए जरूरी फर्नीचर वगैरह लाने में मदद करता है। इन अवसरों के साथ ही इस योजना से फार्मा सेक्टर में संभावनाओं का एक नया आयाम भी खुला है। भाइयों और बहनों, आज मेड इन इंडिया दवाइयां और सर्जिकल्स की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इससे भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब 75 आयुष दवाएं, जिसमें होम्योपैथी होती है, आयुर्वेद होता है, उसको भी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है। आयुष दवाएं सस्ते में मिलने से मरीजों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इसमें आयुर्वेद और आयुष मेडिसिन के क्षेत्र को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्थ्य को सिर्फ बीमारी और इलाज का ही विषय माना गया, लेकिन स्वास्थ्य का विषय सिर्फ बीमारी से मुक्ति इतना नहीं है और इलाज तक भी सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है। जिस देश की आबादी, जिस देश के लोग, पुरुष हो, स्त्री हो, शहर के हो, गांव को हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, नौजवान हो, बच्चे हो, वो जितने ज्यादा स्वस्थ होते हैं उतना वो राष्ट्र भी समृद्ध होता है। उनकी ताकत बहुत उपयोगी होती है, देश को आगे बढ़ाने में, ऊर्जा बढ़ाने में काम आती है। इसलिए हमने इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया है जो बीमारी की वजह बनती है। जब देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, जब देश में करोड़ों शौचालयों का निर्माण होता है, जब देश में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है,
जब देश में आयुष्मान भारत योजना घर घर पहुंच रही है, मिशन इंद्रधनुष हो, पोषण अभियान चला, तो इसके पीछे यही सोच थी। हमने हेल्थ को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता की सोच के साथ एक होलिस्टिक तरीके से काम किया। हमने योग को दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है और बड़े चाव से मना रही है, जी जान से मना रही है। आप देखिए कितने बड़े गर्व की बात होती है जब हमारे काढ़े, हमारे मसालों, हमारे आयुष के समाधानों की चर्चा करते हैं। इससे पहले जो कभी हिचकते थे वो आज गर्व के साथ एक दूसरे को कहते हैं ये लीजिए। आजकल हमारी हल्दी का एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है कि कोरोना के बाद दुनिया को लगा है भारत के पास तो बहुत कुछ है। आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है, हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल मेडिसिन का लोहा मानने लगी है। हमारे यहां खाने में जो चीजें कभी बहुत उपयोगी होती थी, जैसे रागी, कोरा, कोदा, जवार, बाजरा, ऐसे दर्जनों मोटे अनाजों की हमारे देश में समृद्ध परंपरा है। जब पिछली बार मैं कर्नाटका का मेरा प्रवास था तो हमारे वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने मोटे अनाज का एक बहुत बड़ा शो रखा था और इतने प्रकार के मोटे अनाज जो छोटे छोटे किसान पैदा कर उसकी कितनी पौष्टिकता है, बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको प्रदर्शित किया था। लेकिन हम जानते हैं इन पौष्टिक अनाजों को देश में उतना प्रोत्साहन नहीं किया गया। एक प्रकार से ये तो गरीबों का है, ये तो जिसके पास पैसे नहीं वो खाता, ये मानसिकता बन गई थी। लेकिन आज अचानक स्थिति बदल गई है और स्थिति बदलने के लिए हमने लगातार प्रयास किया है। आज मोटे अनाजों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया जा रहा है, बल्कि अब भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की भी घोषित किया है। ये मोटा अनाज मिलेट्स पर फोकस से देश की पौष्टिक अन्न भी मिलेगा और हमारे किसानों की आय भी बढ़ेगी। और अब तो 5 स्टार होटल में भी लोग ऑर्डर करते समय कहते हैं कि हमें वो मोटे अनाज की फलानी चीज खानी है। धीरे धीरे, क्योंकि सबको लगने लगा है कि एक मोटा अनाज शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और अब तो यूएन ने माना है, दुनिया ने माना है। 2023 में पूरी दुनिया एक वर्ष के रूप में उसको मनाने वाली है और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि मोटा अनाज वहीं पैदा होता है, वही लोग मेहनत करके निकालते हैं। साथियों, बीते वर्षों में इलाज में आने वाले हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इलाज को हर गरीब तक पहुंचाया गया है। जरूरी दवाओं को, चाहे हार्ट स्टेंट की बात हो, नी सर्जरी से जुड़े उपकरणों की बात हो, उस कीमतों को कई गुना कम कर दिया गया है। इससे लोगों को सालाना करीब 12,500 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। आयुष्मान योजना से देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। इसका लाभ अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग ले चुके हैं। अनुमान है कि इससे भी लोगों को करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यानी जन औषधि, आयुष्मान, स्टेंट और अन्य उपकरणों की कीमत घटने से हो रही बचत को अगर हम जोड़ें, सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातों की मैं बात कर रहा हूं, तो आज मध्यम वर्ग का, सामान्य परिवार का करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल बच रहा है। साथियों, भारत दुनिया की फार्मेसी है, ये सिद्ध हो चुका है। दुनिया हमारी जेनरिक दवाएं लेती है, लेकिन हमारे यहां ही उनको एक प्रकार से उदासीनता रही, प्रोत्साहित नहीं किया गया। अब हमने इस पर बल दिया है। हमने जेनरिक दवाओं पर जितना जोर लगा सकते हैं लगा, ताकि
सामान्य मानवी का पैसा बचना चाहिए और बीमारी भी जानी चाहिए। कोरोना काल में दुनिया ने भी भारत की दवाओं की शक्ति को अनुभव किया है। यही स्थिति हमारी वैक्सीन इंडस्ट्री की थी। भारत के पास अनेक बीमारियों की वैक्सीन बनाने की क्षमता थी, लेकिन जरूरी प्रोत्साहन की कमी थी। हमने इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया और आज भारत में बने टीके हमारे बच्चों को बचाने के काम आ रहे हैं। साथियों, देश को आज अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है कि हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने लिए भी है और दुनिया की मदद करने के लिए भी है। हमारी सरकार ने यहां भी देश के गरीबों का, मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। आज सरकारी अस्पतालों में कोरोना का फ्री टीका लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में दुनिया में सबसे सस्ता यानी सिर्फ 250 रुपये का टीका लगाया जा रहा है। हर दिन लाखों साथियों को भारत का अपना टीका लग रहा है। नंबर आने पर मैं भी अपनी पहली डोज लगवा चुका हूं। साथियों, देश में सस्ता और प्रभावी इलाज होने के साथ साथ पर्याप्त मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए हमने गांव के अस्पतालों से लेकर के मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसे संस्थानों तक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम शुरू किया है। गांवों में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 50,000 से ज्यादा सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं। ये सिर्फ खांसी बुखार के सेंटर नहीं है, बल्कि यहां गंभीर बीमारियों के परीक्षण की सुविधाएं देने का प्रयास है। पहले जिन छोटे छोटे टेस्ट को कराने के लिए शहरों तक पहुंचना पड़ता था, वो टेस्ट अब इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध हो रहे हैं। साथियों, इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य के संपूर्ण समाधानों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की घोषणा की गई है। हर जिले में जांच केंद्र, 600 से ज्यादा जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल जैसे अनेक प्रावधान किए गए हैं। आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी हमें इतना परेशान ना करें, इसके लिए देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के अभियान को गति दी जा रही है। हर 3 लोकसभा केंद्रों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर काम चल रहा है। बीते 6 सालों में करीब 180 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले जहां देश में लगभग 55,000 एमबीबीएस सीटें थी, वहीं 6 साल के दौरान इसमें 30,000 से ज्यादा की वृद्धि की जा चुकी है। इसी तरह पीजी सीटें भी जो 30,000 हुआ करती थी, उनमें 24,000 ज्यादा नई सीटें जोड़ी जा चुकी है। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न आत्मार्थम नापि कामार्थम अद्भुत दयाम प्रति, अर्थात औषधियों का, चिकित्सा का ये विज्ञान जीव मात्र के प्रति करुणा के लिए है। इसी भाव के साथ आज सरकार की कोशिश ये है कि मेडिकल साइंस के लाभ से कोई भी वंचित न रहे। इलाज सस्ता हो, इलाज सुलभ हो, इलाज सर्वजन के लिए हो, इसी सोच के साथ आज नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का नेटवर्क तेजी से फैले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसी कामना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिन परिवारों में बीमारी है, जिन्होंने जन औषधि का लाभ लिया है, उनसे मैं कहूंगा कि आप भी अधिकतम लोगों को जन औषधि का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। हर दिन लोगों को समझाइए, आप ही इस बात को फैलाकर उसकी मदद कीजिए, उसकी सेवा कीजिए और आप स्वस्थ रहे। दवाई के साथ साथ जीवन में कुछ अनुशासन का पालन भी बीमारी में बहुत जरूरी होता है, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। मुझे आपके स्वास्थ्य की हमेशा कामना रहेगी। मैं चाहूंगा मेरा देश का हर नागरिक, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं,
आप ही मेरा परिवार है। आपकी बीमारी यानी मेरे परिवार की बीमारी है और इसलिए मैं चाहता हूं मेरे देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहें। उसके लिए स्वच्छता की जरूरत है, वहां स्वच्छता रखें। भोजन में नियमों का पालन करना है, भोजन में नियम का पालन करें। जहां योग की आवश्यकता है योग करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, कोई फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े, कुछ न कुछ हम शरीर के लिए करते रहें। जरूर बीमारी से बचेंगे और बीमारी आ गई तो जन औषधि हमें बीमारी से लड़ने की ताकत देगी। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। औषध विभाग और देश भर से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थिति और अपने योगदान के लिए सभी माननीय मंत्रीगण, राज्य के मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, भारतीय जन औषधि परियोजना के परिवार के सदस्य, लाभार्थियों को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू टू ऑल। नमस्ते। नमस्ते सर। సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నంబర్ 1 స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Model High School, Nagaram. Admissions are in progress. Call 040-271-46899 and 040-271-48699.